एक मिनट। To love you with mountain range. The mountain range. हेलो सर हाँ जी, सर। आवाज सुनाई दे रहा है? स्लाइड दिख रहा है सारे लोगों को? हाँ सर, दिख गया। ठीक है। इन ए प्रीवियस लेक्चर, ध्रुव आवाज थोड़ा कम करो। ध्रुव आवाज कम करो। इन ए प्रीवियस लेक्चर I talked about introduction of the synchronous machine. ठीक है। Now the today lecture is, ये ध्रुव तुम उधर जाओ, वहां जा करके बस बेटा, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। In started lecture, I discussed about the basic introduction of the synchronous machine. And I explained the basic construction and component of the synchronous machine. And now today class is concentrated on detailed discussion on
and about synchronous generator working principle and its component. And I will discuss about the working of each component used in synchronous generator या synchronous machine. I will start from this slide and I will take some images from the Google for the more clarity. Are you getting my voice clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And first of all, I will start from. ठीक है. ओके, मैं थोड़ा सा एक चीज और शेयर करता हूँ. जस्ट वेट 1 मिनट. And I will show you some figure of the synchronous machine working principle. Suppose uh, I I will take this figure. ठीक है. Can you see the slide and the figure of the synchronous generator? Hello? हेलो. दिखाई दे रहा है? हाँ अब सर. देखिए. Yes, sir. हाँ सर, दिख रही है. देखिए बेटा, यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं, ठीक है ना. तो वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल में जो है सबसे पहला जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन E is equal to minus n d phi upon dt. It is need to write whiteboard or not? Okay, I already discussed many times formula and Faraday law of electromagnetic induction. ठीक है. You know everything about Faraday law of electromagnetic induction. And one other concept is associated with the Faraday law of electromagnetic induction is known as Lenz law. And along with Faraday law of electromagnetic induction and Lenz law, complete complete the basic concept of the generation of EMF. This concept is widely used. Yeah, this concept is used to generate EMF in any coil. E is equal to minus n d phi upon dt, where if E is directly proportional to d phi upon dt and minus sign indicate the concept of Lenz law. Hello? Concept of Lenz law. And this is the basic construction. And this is the stator of the synchronous machine. Rotor. As earlier discussion, I discussed about the field winding is made on a rotor side, while armature winding are made on a stator side. And I discuss about there are two type of construction: salient pole synchronous machine and cylindrical synchronous machine. This rotor is salient
Excuse me 1 minute. This machine armature 3-phase winding is made on a stator winding, and field winding is made on a rotor winding, and field winding is connected to the DC supply. And here one question is arises, how the DC supply is generated. A small DC generator are mount on a shaft of the synchronous generator or alternator, which generate DC voltage, and that voltage is applied to the field winding of the winding of the rotor. ठीक है, this is the basic concept of the synchronous generator. And if we are talking about generator, the three phase A, phase B, and phase C are made on a stator side, stator winding, and connected to these phase are connected to the load transformer. Transformer is a step up transformer. In a previous lecture, I already told about the generation voltage is voltage range is 11 kV to 15 kV. We are generating power at a 11 to 15 kV, and according to distance, its voltage is converted into 132, 220, 400, 765 according to the distance of the transmission line. So this is the question: how the EMF is generated? How the EMF is generated in armature winding? And if first of all we apply DC supply to the field winding is made on a rotor side, and if direct current is applied to the rotor field, then it produces constant magnet. One is north pole and other is a south pole, and then with the help of prime mover, this rotor is rotating in three-phase winding of the which made on a stator winding. ठीक है ना? And then flux is changing with respect to time. Then the Lenz law and Faraday law of electromagnetic play the important role for the generation of the EMF in each coil, and the direction of the induced EMF is finding through the right hand rule, which I already discussed in previous basic concepts. ठीक है, आर यू गेटिंग? यहाँ तक समझ में आ गया सारे लोगों को? हाँ सर। अब इसमें जो है अभी वी आर स्टडी अबाउट द how the DC supply is applied to the field winding. There are many methods. First is just we install a DC generator on a shaft of the alternator, which produces which generated DC supply, and that DC supply is supplied to the rotor of the alternator. ठीक है ना? This is the first method for a connection of the DC supply. And if we are talking about today, this method is a conventional method, and we are talking about today. हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, एक मिनट। अब इसमें जो है, अब पहला कन्वेंशनल मेथड डीसी जनरेटर को हमने इंस्टॉल कर दिया डीसी सप्लाई के लिए, रोटर को डीसी सप्लाई के लिए हमने डीसी जनरेटर इंस्टॉल कर दिया। आवाज मेरी इको हो रही है, आप लोग ऑडियो अपना आप बंद करिए। हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि अब सेकेंड जो कंसेप्ट है हमारा, अब हम अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे पीरियड, एंड
we can use electronics and thyristor to convert AC to DC for the supply of the field winding. And these are the many method of excitation of the rotor. And then EMF is induces according to the armature, according to the armature winding made on a stator winding. ठीक है ना? If we are talking about phase, each phase are 120 degree displacement, and EMF is induces according to that winding phase displacement. ठीक है? दिखाई दे रहा है मेरा फिगर? पहली यस सर। हाँ सर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो है हमारा स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, और ये जो है जो अंदर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो दिख रहा है, ये इसको हम रोटर बोलते हैं। इस पे हमने जो है फील्ड वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है ना? फील्ड वाइंडिंग किया है तो यहाँ से हमने जो है डीसी वोल्टेज को अप्लाई किया हुआ है रोटर के अंदर। जैसे ही रोटर के अंदर डीसी सप्लाई हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो अब सपोज जो है अगर इस डायग्राम को हम चेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन ये है। जब फील्ड का डायरेक्शन है तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब कि नॉर्थ से जो है फ्लक्स बाहर आएगा और साउथ पे टर्मिनेट होगा। तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स का डायरेक्शन यहाँ से नॉर्थ से जो है फ्लक्स इंड्यूस होगा और इधर जो है साउथ पे टर्मिनेट होगा, ठीक है? तो ये जो है हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। और एक बार जो है जब पोल फॉर्म हो जाता है तो ये जो है परमानेंट पोल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई जो है हमेशा कांस्टेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अगर ये साउथ है तो साउथ ही रहेगा, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि हमने जो है 3 बाइंडिंग किया हुआ है, ये बाइंडिंग ए है, बाइंडिंग बी, सॉरी बाइंडिंग बी है और बाइंडिंग सी है, ठीक है ना? बाइंडिंग ए और बी के बीच में जो है फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री का है और बी और सी के बीच में 120 डिग्री का और सी और ए के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो है ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, जैसे सपोज हमने ए की बात किया, ए को जो है हमने रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है जो फेज डिस्प्लेसमेंट है 120 डिग्री जो है यहाँ पे है, 120 डिग्री यहाँ पे है, और ए और बी के बीच में 120 डिग्री, और बी और सी के बीच में 120 डिग्री, और सी और जो है ए के बीच में जो है 120 डिग्री। आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ये साउथ पोल जो है ए को कट कर रहा है, तो यहाँ से जो है हमारा नेगेटिव से जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, 0 पे रीच कर रहा है। सेम टाइम क्या हो रहा है, देखिए इसका नॉर्थ वाला जो है हमारा नॉर्थ वाला इस साइड रोटेट करेगा, इस साइड रोटेट करेगा तो बी पे जाएगा, तो बी जो है हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ से बी जो है ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और उस टाइम क्या हो रहा है, सी पे हमारा जो है सी जो है पॉजिटिव साइकिल जनरेट हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल जो है सी पे था, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इस लाइन की बात करें, इस लाइन पे जो है ये नॉर्थ पोल जो है सी पे है, तो यहाँ पे देखिए जो है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में जो है वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है सी कॉइल के अंदर। फिर इसके बाद में ये नॉर्थ साउथ पोल जो है वाइंडिंग ए को कट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे कुछ रिड्यूस नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सेम जो है अब इसके बाद में ये रोटेट हो करके साउथ का आएगा, तो ये जो है हमारा जो वाइंडिंग वी है, वी के अंदर जो है हमारा इंड्यूस वोल्टेज जो है यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर इसके बाद में इस तरह से 3 फेज जनरेट होता है। समझ में आया यहाँ तक? हेलो, हाँ सर। देख रहे हो ना बेटा किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना है? हेलो, नहीं है सर। एक बार फिर से मैं सारी चीजों को सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ एक साथ। सबसे पहले क्या होगा, अब इसमें जो है देखिए सिंक्रोनस मशीन के अंदर एक स्टेटर होगा, दूसरा रोटर होगा। रोटर 2 तरह का होगा, सैलिएंट टाइप रोटर होगा
सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होगा, यहाँ पे सैलियन टाइप रोटर लिया गया है। अब रोटर को जो है डीसी से एक्साइटेड करेंगे, डीसी से एक्साइटेड करेंगे तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट फॉर्म होगा, एक साउथ होगा एक नॉर्थ होगा। स्टेटर पे 3 फेज वाइंडिंग करेंगे, 3 फेज वाइंडिंग जो है हर दो वाइंडिंग के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा 120 डिग्री होगा। तो सबसे पहले अगर इस फिगर को चेक करते हैं तो कॉयल ए को जो है साउथ पोल कट कर रहा है और कॉयल सी को जो है नॉर्थ पोल कट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो साउथ है तो साउथ की वजह से जो है हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हम ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग जो हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओरिजिन से जो है अगर अपर पार्ट है तो ये जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है और इससे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो पहला नॉर्थ पोल जो है सी पे है, तो सी पे जो है हमारा देखिए यहाँ पे सी पे जो है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से वोल्टेज हमारा इंड्यूस होना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे ये जो है नॉर्थ पोल मूव करेगा तो फ्लक्स जो है हमारा रिड्यूस होगा। तो उस केस में जो है इंड्यूसेस जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस हो रहा है वो भी रिड्यूस होगा। तो इस तरह से रिड्यूस होकर के यहाँ पे जीरो हो रहा है। सेम टाइम जिस समय जो है हमारा नॉर्थ पोल यहाँ पे था तो वाइंडिंग ए पे जो है हमारा साउथ था, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर से जो है वाइंडिंग ए के अंदर जो है ईएमएफ जनरेट हुआ है। और सिमिलरली वैसे ही इसके बाद सर्टेन टाइम पीरियड के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वाइंडिंग बी पे जो है ये फ्लक्स साउथ पोल जो है कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ और ये जो है इस तरह से बढ़ना शुरू हो गया और सारे क्वाइल के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है 120 डिग्री है, यहाँ भी 120 डिग्री है, यहाँ भी 120 डिग्री है, यहाँ भी 120 डिग्री है, ठीक है। समझ में आया? हाँ अब सर। लेकिन एक चीज है, अगर फ्लक्स और ईएमएफ ईएमएफ वेव फॉर्म की बात करें तो फ्लक्स और ईएमएफ वेव के अंदर जो है 90 डिग्री का फेज लैगिंग होता है। समझ में आ रहा है? जो कि मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था, जिस समय जो है आर्मेचर के अंदर किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सारी चीजें मैंने बताया था एक बार, ठीक है। शायद आप लोग को बताया था कि किसी और को बताया था। यहां तक समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। अब बेटा इसमें क्या करो कि एक बार इसको फटाफट ये डायग्राम बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। जैसे है वैसे ही फटाफट बना लो, जो चीज मैंने बताया है उसको जो है याद रखना, ठीक है। हो गया, बन गया।
हेलो शैली, सर बना रहे हैं। हो गया सर। सर हो गया। देखिए इसमें क्या है, ये जो है एसी जनरेटर का जो है बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये हमारा जो है आउटर फ्रेम है, ठीक है ना, इसको स्टेटर भी बोलते हैं। स्टेटर के अंदर स्लॉट्स होगा, स्लॉट्स के अंदर जो हमने वाइंडिंग बताया है, वाइंडिंग सर आवाज क्लियर नहीं है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ सर। सर आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही।